جان نثار ڈرامے کے لاسٹ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جعفر شیرواں اور آبا سائیں کو کشمالہ اور سرفراز کے بارے میں ساری حقیقت بتا دیتا ہے، تو ابا سائیں یہ سب کچھ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کشمالہ ہمارے ہی گھر میں موجود ہمارے ساتھ یہ سب کھیل کھیل رہی ہیں۔ تو کشمالہ آبا سائیں سے کہے گی کہ آبا سائیں جعفر بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جعفر نوشیروان سے کہے گا کہ سائیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو آبا سائیں کہیں گے کہ ایسے کون سے ثبوت ہیں تمہارے پاس؟ تو جعفر کہتا ہے کہ آبا سائیں جب کشمالہ بی بی اور سرفراز آپس میں ملتے تھے تو میں نے ان کا پیچھا کیا، ان کی ویڈیو بھی بنائی۔ اما سائیں سن کر کہتی ہیں کہ جعفر تم ہمیں وہ سارے ثبوت پیش کرو۔ تو آپا سائیں کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اتنی ہی دیر میں جعفر فون کرے گا تو آپ کو اور دعا سے کہے گا کہ دعا بیوی اب کی ذرا ضرورت پیش آ گئی ہے اور ساتھ میں اپنا موبائل بھی ضرور لے کے آئیے گا جس میں آپ کے وہ سارے ثبوت کشمالہ اور سرفراز کے خلاف ویڈیو ریکارڈنگ ہے۔ تو دعا کہے گی کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو جعفر کہتا ہے کہ دعا بیوی اب آپ کی سچائی بتانے کا وقت آ چکا ہے۔ دعا اسے کہتی ہے کہ تم فکر بالکل مت کرو، مت تھوڑی ہی دیر میں ابھی آ رہی ہوں۔ جعفر یہ کہہ کر دعا کا فون بند کر دے گا اور دعا تیار ہو جاتی ہے نوشیرو کے گھر پر آنے کے لیے۔ دعا جب تیار ہو کر نوشیرو کے گھر پر آئے گی، نچیرواں آگے ہی بیٹھا ہوگا۔ نچیرواں دعا سے کہے گا کہ تمہارے پاس وہ ریکارڈنگ کہاں پر ہے؟ دعاؤں سے کہے گی کیا تمہیں جعفر کی باتوں پر یقین نہیں آیا جو تم نے مجھے بلانے کی زحمت کی ہے؟ تو نوشیروان کہے گا ریکارڈنگ تمہارے پاس موجود ہے، ہمیں جعفر نے سب کچھ بتا دیا ہے، جب تک تم یہاں پر نہیں آؤ گی ثبوت لے کر تو ہمیں کیسے یقین آئے گا؟ تو دعا نوشیروان سے کہے گی کہ اگر سچائی تمہارے سامنے آ گئی تو تم نے کشمالہ کا آخر کار ہی کیا لینا ہے، تم تب پہلے ہی میرے خلاف ہو، اب تم مجھ سے معافی مانگنے لگ جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا نصرواں، جب سچائی تمہارے سامنے آئے گی تو تم یقین رکھو میں تمہیں ہرگز نے معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی اب میں تمہارے گھر پر واپس آؤں گی۔ تو جعفر دعا سے کہے گا کہ بی بی آپ کو مجھے موبائل جس میں ریکارڈنگ وغیرہ ہے، جب نہ شیروں جعفر سے کشمالہ اور سرفراز کی ساری سچائی کے ثبوت دیکھتا ہے تو وہ تو حیران رہ جائے گا، یہاں تک کہ اباسا بھی کہیں گے کہ قسم اللہ تم اس حد تک گر سکتی ہو، تم تو ہماری بہو ہونے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اماس بھی کشمالہ سے کہیں گی کہ کشمالہ تم آج سے میری بیٹی نہیں رہی اور نہ ہی میں تمہیں اپنی بیٹی اب کہنے گی۔ نوشیروو کو کشمالہ پر سخت غصہ آتا ہے تو دعا کے گی عباس آئی، کیا آپ کو اب بھی یقین نہیں آیا کہ میں اب سے کیا کہتی تھی؟ آپ نے مجھے کس طرح سے اپنے گھر سے رسوا کر کے نکال دیا، یہ کہہ کر کے میں جھوٹی ہوں۔ اگر آپ کو آپ کی یقین نہیں آتا تو میں سرفراز سے آپ کی بات کروا دیتی ہوں۔ عباس آئیں دعا سے کہیں گے کہ صرف مجھے سرفراز کا فون ملا کر دو۔ جب عباس آئیں سرفراز سے بات کریں گے تو اسے کہیں گے کہ تمہیں کچھ وقت کے لیے ہمارے گھر پر آنا ہوگا۔ آج پہلے تو انکار کر دے گا، لیکن عباسا ہی کہیں گے کہ اگر تم نہ آئے تو تمہیں پری طریقے سے اٹھا لیا جائے گا۔ تو سرفراز یہ کہہ کر ان کے گھر پر آخر آ ہی جائے گا۔ دعا سرفراز سے آ کر کہے گی کہ سرفراز آج خدا کے لیے تمہیں نوشیرماں کو وہ سب کچھ بتانا ہوگا جو تمہارے اور کشش درمیان ہو چکا ہے۔ سرفراز پہلے تو دعا کی طرف دیکھے گا اور پھر جا کر عباسائیں سے کہے گا کہ دعا نے جو کچھ بھی آپ کو دکھایا ہے اور جو کچھ بھی کشمالہ کے بارے میں بولا ہے وہ سب کچھ سچ ہے۔ تو کشمالہ سرفراز سے کہتی ہے کہ جھوٹ مت بولو، میں نے کب تمہارا ساتھ دیا ہے؟ تو سرفراز کہے گا کہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اب اس آئی اور اما سائیں تمہاری ریکارڈنگ سب کچھ سن چکے ہیں، پھر تم کس بات سے بدل رہی ہو؟ تو سرفراز عباس آئی اور اما سائی کو بتائے گا کہ دعا کو مارنے کے لیے اس نے مجھے کتنی بڑی رقم دی تھی، یہاں تک کہ اس میں نشیرو کو بھی جان سے مارنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ ناکام رہی ہے۔ دعا سرفراز سے کہ یہ عورت اس حد تک گر جائے گی میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو دعا کشمالہ سے کہے گی کہ کشمالہ تم تو عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو۔ اما سائی کشمالہ سے کہیں گی کہ کشمالہ تم اس حد تک گر جاؤ گی، تم نے ہمارے بیٹے کو مارنے کی بھی کوشش دی اور زہر بھی تم نے ہی دیا تھا،
اور تم نے بے فضول کا نام دعا پر لگا دیا تو سرفراز کہے گا کہ دعا بالکل بے قصور ہے، دعا نے کچھ بھی نہیں کیا، یہ سب کچھ اگر کیا ہے تو آپ کی بہو کشمالا نے کیا ہے۔ تو کشمالا کو ہاتھ سے پکڑ کر اماں سائیں کہیں گی کہ اب تم اس گھر میں نہیں رہ سکتی۔ کشملا جا کر عباس آئیں کے پیروں میں گر جائے گی اور انہیں کہیں گی کہ سرفراز سب کچھ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن عباس صحیح کہیں گے کہ جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے سن چکے ہیں اب وہ جھوٹ ہے، تم اس بات کو جھٹلا نہیں سکتی ہو۔ تو نوشیروان عباس آئی اور اماں سائی سے کہے گا کہ اب یہ عورت اس گھر میں نہیں رہ سکتی، آ تو کچھ مالا اس گھر میں رہے گی آ تو پھر میں اور دعا اس گھر میں رہیں گی۔ تو اماں سائیں کہیں گی کہ بیٹا نے شیرواں کشمالا اس وقت کہاں پہ جائے گی؟ تو ابا صحیح کہیں گی کہ جہاں پہ مرضی جائے، ہمیں اس سے کیا لگے، اب یہ ہماری بہو نہیں ہو سکتی، جوار تو لگ مر گیا ہے اور اس کے بچے ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہماری بیٹے کا فون ہے، ہم اس عورت کے ساتھ ہرگز بھی اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے۔ کشمالا ان سے گڑگڑا کر معافی مانگے گی کہ اماں شاہی مجھے اس گھر سے مت نکالیے۔ تو کشمالا ایک دم سے اپنے دماغ پر سارا بوجھ لے لیتی ہے، یہاں تک کہ کشمالا کا دماغ گنج ہو جائے گا اور وہ پاگلوں والی حرکتیں کرنے لگ جائیں گی، یہاں تک کہ پولیس بھی کشملا کو لینے کے لیے آئے گی، لیکن وہ پاگلوں والی حرکتیں کرے گی اور ناشیروں کرتی ہوئی پھرے گی، نصروا اس کو گھر سے نکال دے گا۔ تو اماں سائیں اسے کہیں گی کہ بیٹا، مجھے تو لگتا ہے کہ کشمالا کی آج وہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کو پاگل خانے میں اب جمع کروانا ہی ہوگا۔ کون؟ شیرواں جفر سے کہے گا کہ فوراً سے اس عورت کو پاگل خانے میں بھیج دیا جائے کیونکہ اب اس کا علاج وہاں پر ہی جائز ہے۔ تو جفر کہے گا کہ نوشیروان سائیں اب جیسا بھی کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جان نثار ڈرامے کے لاسٹ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جفر شیرواں اور آبا سائیں کو کشمالا اور سرفراز کے بارے میں ساری حقیقت بتا دیتا ہے، تو ابا سائیں یہ سب کچھ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کشمالا ہمارے ہی گھر میں موجود ہمارے ساتھ یہ سب کھیل کھیل رہی ہیں۔ تو کشمالا آبا سائیں سے کہے گی کہ آبا سائیں جفر بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جفر نوشیروان سے کہے گا کہ سائیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو آبا سائیں کہیں گے کہ ایسے کون سے ثبوت ہیں تمہارے پاس؟ تو جفر کہتا ہے کہ آبا سائیں جب کشمالا بی بی اور سرفراز آپس میں ملتے تھے تو میں نے ان کا پیچھا کیا، ان کی ویڈیو بھی بنائی۔ اماں سائیں سن کر کہتی ہیں کہ جفر تم ہمیں وہ سارے ثبوت پیش کرو۔ تو آپا سائیں کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اتنی ہی دیر میں جفر فون کرے گا تو آپ کو اور دعا سے کہے گا کہ دعا بیوی اب کی ذرا ضرورت پیش آ گئی ہے اور ساتھ میں اپنا موبائل بھی ضرور لے کے آئیے گا جس میں آپ کے وہ سارے ثبوت کشمالا اور سرفراز کے خلاف ویڈیو ریکارڈنگ ہے۔ تو دعا کہے گی کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو جفر کہتا ہے کہ دعا بیوی اب آپ کی سچائی بتانے کا وقت آ چکا ہے۔ دعا اسے کہتی ہے کہ تم فکر بالکل مت کرو، مت تھوڑی ہی دیر میں ابھی آ رہی ہوں۔ جفر یہ کہہ کر دعا کا فون بند کر دے گا اور دعا تیار ہو جاتی ہے نوشیرو کے گھر پر آنے کے لیے۔ دعا جب تیار ہو کر نوشیرو کے گھر پر آئے گی، نچیرواں آگے ہی بیٹھا ہوگا۔ نچیرواں دعا سے کہے گا کہ تمہارے پاس وہ ریکارڈنگ کہاں پر ہے؟ دعاؤں سے کہے گی کیا تمہیں جفر کی باتوں پر یقین نہیں آیا جو تم نے مجھے بلانے کی زحمت کی ہے؟ تو نوشیروان کہے گا ریکارڈنگ تمہارے پاس موجود ہے، ہمیں جفر نے سب کچھ بتا دیا ہے، جب تک تم یہاں پر نہیں آؤ گی ثبوت لے کر تو ہمیں کیسے یقین آئے گا؟ تو دعا نوشیروان سے کہے گی کہ اگر سچائی تمہارے سامنے آ دی گئی تو تم نے کشمالا کا آخر کار ہی کیا لینا ہے، تم تب پہلے ہی میرے خلاف ہو، اب تم مجھ سے معافی مانگنے لگ جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا نصرواں، جب سچائی تمہارے سامنے آئے گی تو تم یقین رکھو میں تمہیں ہرگز نے معاف نہیں کروں گی اور نہ ہی اب میں تمہارے گھر پر واپس آؤں گی۔ تو جفر دعا سے کہے گا کہ بی بی آپ کو مجھے موبائل جس میں ریکارڈنگ وغیرہ ہے، جب نہ شیروں جفر سے کشمالا اور سرفراز کی ساری سچائی کے ثبوت دیکھتا ہے تو وہ تو حیران رہ جائے گا، یہاں تک کہ عباسا بھی کہیں گے کہ قسم اللہ تم اس حد تک گر سکتی ہو، تم تو ہماری بہو ہونے کے لائق ہی نہیں ہو۔ اماس بھی کشمالا سے کہیں گی کہ کشمالا تم آج سے میری بیٹی نہیں رہی اور نہ ہی میں تمہیں اپنی بیٹی اب کہوں گی۔
नौशेरवों को कशमाला पर सख्त गुस्सा आता है तो दुआ केगी अब्बास आई। क्या आपको अब भी यकीन नहीं आया कि मैं अब से क्या कहती थी? आपने मुझे किस तरह से अपने घर से रुसवा करके निकाल दिया, ये कह कर के मैं झूठी हूं। अगर आपको आपकी यकीन नहीं आता तो मैं सरफराज से आपकी बात करवा देती हूं। अब्बास आई दुआ से कहेंगे कि सिर्फ मुझे सरफराज का फ़ोन मिला कर दो। जब अब्बास आई सरफराज से बात करेंगे तो उसे कहेंगे कि तुम्हें कुछ वक्त के लिए हमारे घर पर आना होगा। आज पहले तो इनकार कर देगा, लेकिन अब्बास ही कहेंगे कि अगर तुम ना आए तो तुम्हें प्री तरीके से उठा लिया जाएगा। तो सरफराज ये कहकर उनके घर पर आखिर आ ही जाएगा। दुआ सरफराज से आकर कहेगी कि सरफराज आज खुदा के लिए तुम्हें नौशीरम्मा को वो सब कुछ बताना होगा जो तुम्हारे और कशिश दरमियान हो चुका है। सरफराज पहले तो दुआ की तरफ देखेगा और फिर जाकर अब्बासाई से कहेगा कि दुआ ने जो कुछ भी आपको दिखाया है और जो कुछ भी कशमिला के बारे में बोला है वो सब कुछ सच सच है। तो कशमाला सरफराज से कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने कब तुम्हारा साथ दिया है? तो सरफराज कहेगा कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब इस आई और अम्मा साई तुम्हारी रिकॉर्डिंग सब कुछ सुन चुके हैं, फिर तुम किस बात से बदल रही हो? तो सरफराज अब्बास आई और अम्मा साई को बताएगा कि दुआ को मारने के लिए उसने मुझे कितनी बड़ी रकम दी थी, यहां तक कि इसमें निशीरू को भी जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन ये नाकाम रही है। दुआ सरफराज से कि ये औरत इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो दुआ कशमाला से कहेगी कि कशमाला तुम तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं हो। अम्मा साई कशमाला से कहेंगी कि कशमाला तुम इस हद तक गिर जाओगी, तुमने हमारे बेटे को मारने की भी कोशिश दी और जहर भी तुमने ही दिया था, और तुमने बेफजूल का नाम दुआ पर लगा दिया। तो सरफराज कहेगा कि दुआ बिल्कुल बेकसूर है, दुआ ने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ अगर किया है तो आपकी बहू कशमाला ने किया है। तो कशमाला को हाथ से पकड़कर अम्मा साई कहेंगी कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। कशमिला जाकर अब्बास आई के पैरों में गिर जाएगी और उन्हें कहेंगी कि सरफराज सब कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन अब्बास सही कहेंगे कि जो कुछ हम अपनी आंखों से सुन चुके हैं अब वो झूठ है, तुम इस बात को झकला नहीं सकती हो। तो नौशेरवान अब्बास आई और अम्मा साई से कहेगा कि अब ये औरत इस घर में नहीं रह सकती, आ तो कुछ माला इस घर में रहेगी या तो फिर मैं और दुआ इस घर में रहेंगी। तो अम्मा साई कहेंगी कि बेटा ने शेरवां कशमाला इस वक्त कहाँ पे जाएगी? तो अब्बा सही कहेंगी कि जहाँ पे मर्जी जाए, हमें इससे क्या लगे, अब ये हमारी बहू नहीं हो सकती। जवार तो लग मर गया है और उसके बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी बेटे का फोन है, हम इस औरत के साथ हरगिज भी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। कशमाला उनसे गिड़गिड़ा कर माफाहे मांगेगी कि अम्मा शाही मुझे इस घर से मत निकालिए। तो कशमाला एकदम से अपने दिमाग पर सारा बोझ ले लेती है, यहां तक कि कशमाला का दिमाग गुंज हो जाएगा और वो पागलों वाली हरकतें करने लग जाएंगी। यहां तक कि पुलिस भी कशमिला को लेने के लिए आएगी, लेकिन वो पागलों वाली हरकतें करेगी और नाशेरों करती हुई फिरेगी। नसरवा इसको घर से निकाल देगा। तो अम्मा साईं उसे कहेंगी कि बेटा, मुझे तो लगता है कि कशमाला की आज वो हालत हो गई है कि इसको पागल खाने में अब जमा करवाना ही होगा। कौन? शेरवां जफर से कहेगा कि फौरन से इस औरत को पागल खाने में भेज दिया जाए, क्योंकि अब इसका इलाज वहां पर ही जायज है। तो जफर कहेगा कि नौशेरवां साईं अब जैसा भी कहेंगे वैसा ही होगा। जान निसार ड्रामे के लास्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखेंगे कि जफर शेरवां और अब्बासाई को कशमाला और सरफराज के बारे में सारी हकीकत बता देता है। तो अब्बासाई ये सब कुछ सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कशमाला हमारे ही घर में मौजूद हमारे साथ ये सब खेल खेल रही है। तो कशमाला अब्बासाई से कहेगी कि अब्बासाई जफर बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जफर नौशेरवां से कहेगा कि साईं अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सबूत में पेश कर सकता हूं। तो अब्बासाई कहेंगे कि ऐसे कौन से सबूत हैं तुम्हारे पास? तो जफर कहता है कि अब्बासाई जब जब कशमाला बीबी और सरफराज आपस में मिलते थे
तो मैंने उनका पीछा किया, उनकी वीडियो भी बनाई। अम्मा साईं सुनकर कहती हैं कि जफर तुम हमें वो सारे सबूत पेश करो। तो आपा साईं कहते हैं कि बस बहुत हो गया, इतनी ही देर में जफर फोन करेगा तो आपको और दुआ से कहेगा कि दुआ बीवी अब की ज़रा ज़रूरत पेश आ गई है, और साथ में अपना मोबाइल भी ज़रूर लेके आइएगा, जिसमें आपके वो सारे सबूत किशमाला और सरफराज के खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो दुआ कहेगी कि ऐसी भी क्या बात हो गई है। तो जफर कहता है कि दुआ बीवी, अब आपकी सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। दुआ उसे कहती है कि तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मत, थोड़ी ही देर में अभी आ रही हूं। जफर ये कहकर दुआ का फोन बंद कर देगा और दुआ तैयार हो जाती है नौशेरू के घर पर आने के लिए। दुआ जब तैयार होकर नौशेरू के घर पर आएगी, नुचीरवा आगे ही बैठा होगा। नुचीरवा दुआ से कहेगा कि तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर है। दुआओं से कहेगी क्या तुम्हें जफर की बातों पर यकीन नहीं आया जो तुमने मुझे बुलाने की जहमत की है। तो नौशेरवान कहेगा रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास मौजूद है, हमें जफर ने सब कुछ बता दिया है, जब तक तुम यहां पर नहीं आओगी सबूत लेकर तो हमें कैसे यकीन आएगा। तो दुआ नौशेरवा से कहेगी कि अगर सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई तो तुमने कशमाला का आखिरकार ही किया लेना है, तुम तब पहले ही मेरे खिलाफ हो, अब तुम मुझसे माफाहे मांगने लग जाओगे। और एक बात याद रखना नसरवा, जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम यकीन रखो मैं तुम्हें हरगज़ ने मुआफ नहीं करूंगी और ना ही अब मैं तुम्हारे घर पर वापस आऊंगी। तो जफर दुआ से कहेगा कि बीबी आपको मुझे मोबाइल जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह है, जब नौशेरों जफर से कशमाला और सरफराज की सारी सच्चाई के सबूत देखता है तो वो तो हैरान रह जाएगा, यहां तक कि अब्बासा भी कहेंगे कि कसम अल्लाह तुम इस हद तक गिर सकती हो, तुम तो हमारी बहू होने के लायक ही नहीं हो। अम्मास भी कशमाला से कहेंगी कि कशमाला तुम आज से मेरी बेटी नहीं रही और न ही मैं तुम्हें अपनी बेटी अब कहूंगी। नौशेरवो को कशमाला पर सख्त गुस्सा आता है तो दुआ केगी अब्बास आई, क्या आपको अब भी यकीन नहीं आया कि मैं अब से क्या कहती थी? आपने मुझे किस तरह से अपने घर से रुसवा करके निकाल दिया, ये कहकर के मैं झूठी हूं। अगर आपको आपकी यकीन नहीं आता तो मैं सरफराज से आपकी बात करवा देती हूं। अब्बास आए दुआ से कहेंगे कि सिर्फ मुझे सरफराज का फोन मिला कर दो। जब अब्बास आई सरफराज से बात करेंगे तो उसे कहेंगे कि तुम्हें कुछ वक्त के लिए हमारे घर पर आना होगा। आज पहले तो इनकार कर देगा, लेकिन अब्बासा ही कहेंगे कि अगर तुम ना आए तो तुम्हें कई तरीके से उठा लिया जाएगा। तो सरफराज ये कहकर उनके घर पर आखिर आ ही जाएगा। दुआ सरफराज से आकर कहेगी कि सरफराज आज खुदा के लिए तुम्हें नौशीरम्मा को वो सब कुछ बताना होगा जो तुम्हारे और कशिश दरमियान हो चुका है। सरफराज पहले तो दुआ की तरफ देखेगा और फिर जाकर अब्बासाई से कहेगा कि दुआ ने जो कुछ भी आपको दिखाया है और जो कुछ भी कशमिला के बारे में बोला है वो सब कुछ सच सच है। तो कशमाला सरफराज से कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने कब तुम्हारा साथ दिया है। तो सरफराज कहेगा कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब इस आई और अम्मा साईं तुम्हारी रिकॉर्डिंग सब कुछ सुन चुके हैं, फिर तुम किस बात से बदल रही हो। तो सरफराज अब्बास आई और अम्मा साई को बताएगा कि दुआ को मारने के लिए उसने मुझे कितनी बड़ी रकम दी थी, यहां तक कि इसमें निशीरू को भी जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन ये नाकाम रही है। दुआ सरफराज से कि ये औरत इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो दुआ कशमाला से कहेगी कि कशमाला तुम तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं हो। अम्मा साई कशमाला से कहेंगी कि कशमाला तुम इस हद तक गिर जाओगी, तुमने हमारे बेटे को मारने की भी कोशिश दी और जहर भी तुमने ही दिया था और तुमने बेफजूल का नाम दुआ पर लगा दिया। तो सरफराज कहेगा कि दुआ बिल्कुल बेकसूर है, दुआ ने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ अगर किया है तो आपकी बहू कशमाला ने किया है। तो कशमाला को हाथ से पकड़कर अम्मा साईं कहेंगी कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। कशमिला जाकर अब्बास आए के पैरों में गिर जाएगी और उन्हें कहेंगी कि सरफराज सब कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन अब्बास ही कहेंगे कि जो कुछ हम अपनी आंखों से सुन चुके हैं अब वो झूठ है, तुम इस बात को झकला नहीं सकती हो। तो नौशेरवान अब्बास आई और अम्मा साई से कहेगा कि अब ये औरत इस घर में नहीं रह सकती, आ तो कुछ माला इस घर में रहेगी, आ तो फिर मैं और दुआ इस घर में रहेंगी।
تو अम्मा साईं कहेंगी कि बेटा ने शेरवां कशमाला इस वक्त कहाँ पे जाएगी, तो अब्बा सही कहेंगी कि जहाँ पे मर्जी जाए, हमें इससे क्या लगे, अब ये हमारी बहू नहीं हो सकती। जवार तो लग मर गया है और उसके बच्चे हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारी बेटे का फोन है, हम इस औरत के साथ हरगिज भी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। कशमाला उनसे गिड़गिड़ा कर माफाहे मांगेगी कि अम्मा शाही मुझे इस घर से मत निकालिए। तो कशमाला एकदम से अपने दिमाग पर सारा बोझ ले लेती है, यहां तक कि कशमाला का दिमाग गुंज हो जाएगा और वो पागलों वाली हरकतें करने लग जाएंगी। यहां तक कि पुलिस भी कशमिला को लेने के लिए आएगी, लेकिन वो पागलों वाली हरकतें करेगी और नाशेरों करती हुई फिरेगी। नसरवा इसको घर से निकाल देगा। तो अम्मा साईं उसे कहेंगी कि बेटा, मुझे तो लगता है कि कशमाला की आज वो हालत हो गई है कि इसको पागल खाने में अब जमा करवाना ही होगा। कौन? शेरवां जफर से कहेगा कि फौरन से इस औरत को पागल खाने में भेज दिया जाए, क्योंकि अब इसका इलाज वहां पर ही जायज है। तो जफर कहेगा कि नौशेरवां साईं अब जैसा भी कहेंगे वैसा ही होगा। जान निसार ड्रामे के लास्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखेंगे कि जफर शेरवां और आबा साईं को कशमाला और सरफराज के बारे में सारी हकीकत बता देता है। तो अब्बा साईं ये सब कुछ सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कशमाला हमारे ही घर में मौजूद हमारे साथ ये सब खेल खेल रही है। तो कशमाला आबा साईं से कहेगी कि आबा साईं, जफर बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जफर नौशेरवां से कहेगा कि साईं, अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सबूत में पेश कर सकता हूं। तो आबा साईं कहेंगे कि ऐसे कौन से सबूत हैं तुम्हारे पास? तो जफर कहता है कि आबा साईं, जब जब कशमाला बीबी और सरफराज आपस में मिलते थे तो मैंने उनका पीछा किया, उनकी वीडियो भी बनाई। अम्मा साईं सुनकर कहती हैं कि जफर, तुम हमें वो सारे सबूत पेश करो। तो आपा साईं कहते हैं कि बस बहुत हो गया, इतनी ही देर में जफर फोन करेगा तो आपको और दुआ से कहेगा कि दुआ बीवी, अब की जरा जरूरत पेश आ गई है और साथ में अपना मोबाइल भी जरूर लेके आइएगा, जिसमें आपके वो सारे सबूत कशमाला और सरफराज के खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो दुआ कहेगी कि ऐसी भी क्या बात हो गई है? तो जफर कहता है कि दुआ बीवी, अब आपकी सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। दुआ उसे कहती है कि तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मत, थोड़ी ही देर में अभी आ रही हूं। जफर ये कहकर दुआ का फोन बंद कर देगा और दुआ तैयार हो जाती है नौशेरू के घर पर आने के लिए। दुआ जब तैयार होकर नौशेरू के घर पर आएगी, नुचीरवां आगे ही बैठा होगा। नुचीरवां दुआ से कहेगा कि तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर है? दुआओं से कहेगी, क्या तुम्हें जफर की बातों पर यकीन नहीं आया जो तुमने मुझे बुलाने की जहमत की है? तो नौशेरवान कहेगा, रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास मौजूद है, हमें जफर ने सब कुछ बता दिया है, जब तक तुम यहां पर नहीं आओगी सबूत लेकर तो हमें कैसे यकीन आएगा? तो दुआ नौशेरवां से कहेगी कि अगर सच्चाई तुम्हारे सामने आ दी गई तो तुमने कशमाला का आखिरकार ही किया लेना है, तुम तब पहले ही मेरे खिलाफ हो, अब तुम मुझसे माफाहे मांगने लग जाओगे। और एक बात याद रखना नसरवा, जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम यकीन रखो मैं तुम्हें हरगज़ ने मुआफ नहीं करूंगी और ना ही अब मैं तुम्हारे घर पर वापस आऊंगी। तो जफर दुआ से कहेगा कि बीबी, आपको मुझे मोबाइल जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह है, जब ना शेरों जफर से कशमाला और सरफराज की सारी सच्चाई के सबूत देखता है तो वो तो हैरान रह जाएगा। यहां तक कि अब्बासा भी कहेंगे कि कसम अल्लाह, तुम इस हद तक गिर सकती हो, तुम तो हमारी बहू होने के लायक ही नहीं हो। अम्मास भी कशमाला से कहेंगी कि कशमाला, तुम आज से मेरी बेटी नहीं रही और ना ही मैं तुम्हें अपनी बेटी अब कहूंगी। नौशेरवों को कशमाला पर सख्त गुस्सा आता है तो दुआ केगी, अब्बास आई, क्या आपको अब भी यकीन नहीं आया कि मैं अब से क्या कहती थी? आपने मुझे किस तरह से अपने घर से रुसवा करके निकाल दिया, ये कहकर के मैं झूठी हूं। अगर आपको आपकी यकीन नहीं आता तो मैं सरफराज से आपकी बात करवा देती हूं। अब्बास आए दुआ से कहेंगे कि सिर्फ मुझे सरफराज का फोन मिलाकर दो। जब अब्बास आई सरफराज से बात करेंगे तो उसे कहेंगे कि तुम्हें कुछ वक्त के लिए हमारे घर पर आना होगा। आज पहले तो इनकार कर देगा, लेकिन अब्बासा ही कहेंगे कि अगर तुम ना आए तो तुम्हें पूरी तरीके से उठा लिया जाएगा। तो सरफराज ये कहकर उनके घर पर आखिर आ ही जाएगा।
दुआ सरफराज से आकर कहेगी कि सरफराज आज खुदा के लिए तुम्हें नौशीरम्मा को वो सब कुछ बताना होगा जो तुम्हारे और कशिश दरमियान हो चुका है। सरफराज पहले तो दुआ की तरफ देखेगा और फिर जाकर अब्बासाई से कहेगा कि दुआ ने जो कुछ भी आपको दिखाया है और जो कुछ भी कश्मिला के बारे में बोला है वो सब कुछ सच सच है। तो कश्माला सरफराज से कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने कब तुम्हारा साथ दिया है। तो सरफराज कहेगा कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब इस आई और अम्मा साई तुम्हारी रिकॉर्डिंग सब कुछ सुन चुके हैं, फिर तुम किस बात से बदल रही हो। तो सरफराज अब्बास आई और अम्मा साई को बताएगा कि दुआ को मारने के लिए उसने मुझे कितनी बड़ी रकम दी थी, यहां तक कि इसमें निशिरू को भी जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन ये नाकाम रही है। दुआ सरफराज से कि ये औरत इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो दुआ कश्माला से कहेगी कि कश्माला तुम तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं हो। अम्मा साई कश्माला से कहेंगी कि कश्माला तुम इस हद तक गिर जाओगी, तुमने हमारे बेटे को मारने की भी कोशिश दी और जहर भी तुमने ही दिया था, और तुमने बेफजूल का नाम दुआ पर लगा दिया। तो सरफराज कहेगा कि दुआ बिल्कुल बेकसूर है, दुआ ने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ अगर किया है तो आपकी बहू कश्माला ने किया है। तो कश्माला को हाथ से पकड़कर अम्मा साई कहेंगी कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। कश्मिला जाकर अब्बास आई के पैरों में गिर जाएगी और उन्हें कहेंगी कि सरफराज सब कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन अब्बास सही कहेंगे कि जो कुछ हम अपनी आंखों से सुन चुके हैं अब वो झूठ है, तुम इस बात को झकला नहीं सकती हो। तो नौशेरवान अब्बास आई और अम्मा साई से कहेगा कि अब ये औरत इस घर में नहीं रह सकती, आ तो कुछ माला इस घर में रहेगी या तो फिर मैं और दुआ इस घर में रहेंगी। तो अम्मा साई कहेंगी कि बेटा ने शेरवा कश्माला इस वक्त कहाँ पे जाएगी। तो अब्बा सही कहेंगी कि जहाँ पे मर्जी जाए, हमें इससे क्या लगे, अब ये हमारी बहू नहीं हो सकती। जवार तो लग मर गया है और उसके बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी बेटे का फोन है, हम इस औरत के साथ हरगिज भी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। कश्माला उनसे गिड़गिड़ा कर माफाहे मांगेगी कि अम्मा शाही मुझे इस घर से मत निकालिए। तो कश्माला एकदम से अपने दिमाग पर सारा बोझ ले लेती है, यहां तक कि कश्माला का दिमाग डिंज हो जाएगा और वो पागलों वाली हरकतें करने लग जाएंगी, यहां तक कि पुलिस भी कश्मिला को लेने के लिए आएगी, लेकिन वो पागलों वाली हरकतें करेगी और नाशेरों करती हुई फिरेगी। नसरवा इसको घर से निकाल देगा। तो अम्मा साईं उसे कहेंगी कि बेटा मुझे तो लगता है कि कश्माला की आज वो हालत हो गई है कि इसको पागल खाने में अब जमा करवाना ही होगा। कौन? शेरवां जफर से कहेगा कि फौरन से इस औरत को पागल खाने में भेज दिया जाए, क्योंकि अब इसका इलाज वहां पर ही जायज है। तो जफर कहेगा कि नौशेरवां साईं अब जैसा भी कहेंगे वैसा ही होगा। जान निसार ड्रामे के लास्ट आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब देखेंगे कि जफर शेरवां और अब्बासाई को कश्माला और सरफराज के बारे में सारी हकीकत बता देता है। तो अब्बासाई ये सब कुछ सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कश्माला हमारे ही घर में मौजूद हमारे साथ ये सब खेल खेल रही है। तो कश्माला अब्बासाई से कहेगी कि अब्बासाई जफर बिल्कुल झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जफर नौशेरवां से कहेगा कि साईं अगर आप कहते हैं तो मैं आपको सबूत में पेश कर सकता हूं। तो अब्बासाई कहेंगे कि ऐसे कौन से सबूत हैं तुम्हारे पास? तो जफर कहता है कि अब्बासाई जब जब कश्माला बीबी और सरफराज आपस में मिलते थे तो मैंने उनका पीछा किया, उनकी वीडियो भी बनाई। अम्मा साईं सुनकर कहती हैं कि जफर तुम हमें वो सारे सबूत पेश करो। तो अब्बासाई कहते हैं कि बस बहुत हो गया, इतनी ही देर में जफर फोन करेगा तो आपको और दुआ से कहेगा कि दुआ बीवी अब की जरा जरूरत पेश आ गई है और साथ में अपना मोबाइल भी जरूर लेके आइएगा, जिसमें आपके वो सारे सबूत कश्माला और सरफराज के खिलाफ वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो दुआ कहेगी कि ऐसी भी क्या बात हो गई है? तो जफर कहता है कि दुआ बीवी अब आपकी सच्चाई बताने का वक्त आ चुका है। दुआ उसे कहती है कि तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, मत थोड़ी ही देर में अभी आ रही हूं। जफर ये कहकर दुआ का फोन बंद कर देगा और दुआ तैयार हो जाती है नौशेरू के घर पर आने के लिए। दुआ जब तैयार होकर नौशेरू के घर पर आएगी
नुचीरवां आगे ही बैठा होगा। नुचीरवां दुआ से कहेगा कि तुम्हारे पास वो रिकॉर्डिंग कहाँ पर है। दुआओं से कहेगी क्या तुम्हें जफर की बातों पर यकीन नहीं आया जो तुमने मुझे बुलाने की जहमत की है। तो नौशरवान कहेगा रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास मौजूद है, हमें जफर ने सब कुछ बता दिया है, जब तक तुम यहाँ पर नहीं आओगी सबूत लेकर तो हमें कैसे यकीन आएगा। तो दुआ नौशरवां से कहेगी कि अगर सच्चाई तुम्हारे सामने आ दी गई तो तुमने कशमाला का आखिरकार ही किया लेना है, तुम तब पहले ही मेरे खिलाफ हो, अब तुम मुझसे माफाहे मांगने लग जाओगे। और एक बात याद रखना नसरवां, जब सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी तो तुम यकीन रखो मैं तुम्हें हरगज़ ने मुआफ नहीं करूंगी और ना ही अब मैं तुम्हारे घर पर वापस आऊंगी। तो जफर दुआ से कहेगा कि बीबी आपको मुझे मोबाइल जिसमें रिकॉर्डिंग वगैरह है। जब नौशेरों जफर से कशमाला और सरफराज की सारी सच्चाई के सबूत देखता है तो वो तो हैरान रह जाएगा, यहाँ तक कि अब्बासा भी कहेंगे कि कसम अल्लाह तुम इस हद तक गिर सकती हो, तुम तो हमारी बहू होने के लायक ही नहीं हो। अम्मास भी कशमाला से कहेंगी कि कशमाला तुम आज से मेरी बेटी नहीं रही और न ही मैं तुम्हें अपनी बेटी अब कहूँगी। नौशेरवों को कशमाला पर सख्त गुस्सा आता है तो दुआ केगी अब्बास आई, क्या आपको अब भी यकीन नहीं आया कि मैं अब से क्या कहती थी। आपने मुझे किस तरह से अपने घर से रुसवा करके निकाल दिया, ये कहकर के मैं झूठी हूं। अगर आपको आपकी यकीन नहीं आता तो मैं सरफराज से आपकी बात करवा देती हूं। अब्बास आई दुआ से कहेंगे कि सिर्फ मुझे सरफराज का फ़ोन मिलाकर दो। जब अब्बास आई सरफराज से बात करेंगे तो उसे कहेंगे कि तुम्हें कुछ वक्त के लिए हमारे घर पर आना होगा। आज पहले तो इनकार कर देगा, लेकिन अब्बासा ही कहेंगे कि अगर तुम ना आए तो तुम्हें पूरी तरीके से उठा लिया जाएगा। तो सरफराज ये कहकर उनके घर पर आखिर आ ही जाएगा। दुआ सरफराज से आकर कहेगी कि सरफराज आज खुदा के लिए तुम्हें नौशीरम्मा को वो सब कुछ बताना होगा जो तुम्हारे और कशिश दरमियान हो चुका है। सरफराज पहले तो दुआ की तरफ देखेगा और फिर जाकर अब्बासाई से कहेगा कि दुआ ने जो कुछ भी आपको दिखाया है और जो कुछ भी कशमिला के बारे में बोला है वो सब कुछ सच सच है। तो कशमाला सरफराज से कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने कब तुम्हारा साथ दिया है। तो सरफराज कहेगा कि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि अब इस आई और अम्मा साई तुम्हारी रिकॉर्डिंग सब कुछ सुन चुके हैं, फिर तुम किस बात से बदल रही हो। तो सरफराज अब्बास आई और अम्मा साई को बताएगा कि दुआ को मारने के लिए उसने मुझे कितनी बड़ी रकम दी थी, यहां तक कि इसमें निशीरू को भी जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन ये नाकाम रही है। दुआ सरफराज से कि ये औरत इस हद तक गिर जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। तो दुआ कशमाला से कहेगी कि कशमाला तुम तो औरत कहलाने के भी लायक नहीं हो। अम्मा साई कशमाला से कहेंगी कि कशमाला तुम इस हद तक गिर जाओगी, तुमने हमारे बेटे को मारने की भी कोशिश दी और जहर भी तुमने ही दिया था और तुमने बेफजूल का नाम दुआ पर लगा दिया। तो सरफराज कहेगा कि दुआ बिल्कुल बेकसूर है, दुआ ने कुछ भी नहीं किया, ये सब कुछ अगर किया है तो आपकी बहू कशमाला ने किया है। तो कशमाला को हाथ से पकड़कर अम्मा साई कहेंगी कि अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। कशमिला जाकर अब्बास आई के पैरों में गिर जाएगी और उन्हें कहेंगी कि सरफराज सब कुछ झूठ बोल रहा है, लेकिन अब्बास ही कहेंगे कि जो कुछ हम अपनी आंखों से सुन चुके हैं अब वो झूठ है, तुम इस बात को झटला नहीं सकती हो। तो नौशेरवान अब्बास आई और अम्मा साई से कहेगा कि अब ये औरत इस घर में नहीं रह सकती, आ तो कुछ माला इस घर में रहेगी आ तो फिर मैं और दुआ इस घर में रहेंगी। तो अम्मा साई कहेंगी कि बेटा ने शेरवां कशमाला इस वक्त कहाँ पे जाएगी। तो अब्बा सही कहेंगी कि जहाँ पे मर्जी जाए, हमें इससे क्या लगे, अब ये हमारी बहू नहीं हो सकती। जवार तो लग मर गया है और उसके बच्चे हमारी जिम्मेदारी है, वो हमारी बेटे का फोन है, हम इस औरत के साथ हरगिज़ भी अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। कशमाला उनसे गिड़गिड़ा कर माफाहे मांगेगी कि अम्मा शाही मुझे इस घर से मत निकालिए। तो कशमाला एकदम से अपने दिमाग पर सारा बोझ ले लेती है, यहां तक कि कशमाला का दिमाग गुंज हो जाएगा और वो पागलों वाली हरकतें करने लग जाएंगी। यहां तक कि पुलिस भी कशमिला को लेने के लिए आएगी, लेकिन वो पागलों वाली हरकतें करेगी और नाशेरों करती हुई फिरेगी। नसरवा इसको घर से निकाल देगा। तो अम्मा साईं उसे कहेंगी कि बेटा
مجھے تو لگتا ہے کہ کشمالہ کی آج وہ حالت ہو گئی ہے کہ اس کو پاگل خانے میں اب جمع کروانا ہی ہوگا۔ کون شیرواں جفر سے کہے گا کہ فوراً سے اس عورت کو پاگل خانے میں بھیج دیا جائے کیونکہ اب اس کا علاج وہاں پر ہی جائز ہے، تو جفر کہے گا کہ نوشیرواں سائیں اب جیسا بھی کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ جان نثار ڈرامے کے لاسٹ آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اب دیکھیں گے کہ جفر شیرواں اور آبا سائیں کو کشمالہ اور سرفراز کے بارے میں ساری حقیقت بتا دیتا ہے، تو ابا سائیں یہ سب کچھ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ کشمالہ ہمارے ہی گھر میں موجود ہمارے ساتھ یہ سب کھیل کھیل رہی ہیں۔ تو کشمالہ آبا سائیں سے کہے گی کہ آبا سائیں جفر بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ تو جفر نوشیرواں سے کہے گا کہ سائیں اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ثبوت میں پیش کر سکتا ہوں۔ تو آبا سائیں کہیں گے کہ ایسے کون سے ثبوت ہیں تمہارے پاس؟ تو جفر کہتا ہے کہ آبا سائیں جب جب کشمالہ بی بی اور سرفراز آپس میں ملتے تھے تو میں نے ان کا پیچھا کیا، ان کی ویڈیو بھی بنائی۔ اما سائیں سن کر کہتی ہیں کہ جفر تم ہمیں وہ سارے ثبوت پیش کرو۔ تو آپا سائیں کہتے ہیں کہ بس بہت ہو گیا، اتنی ہی دیر میں جفر فون کرے گا تو آپ کو اور دعا سے کہے گا کہ دعا بیوی اب کی ذرا ضرورت پیش آ گئی ہے اور ساتھ میں اپنا موبائل بھی ضرور لے کے آئیے گا جس میں آپ کے وہ سارے ثبوت کشمالہ اور سرفراز کے خلاف ویڈیو ریکارڈنگ ہے۔ تو دعا کہے گی کہ ایسی بھی کیا بات ہو گئی ہے؟ تو جفر کہتا ہے کہ دعا بیوی اب آپ کی سچائی بتانے کا وقت آ چکا ہے۔ دعا اسے کہتی ہے کہ تم فکر بالکل مت کرو، مت تھوڑی ہی دیر میں ابھی آ رہی ہوں۔ جفر یہ کہہ کر دعا کا فون بند کر دے گا اور دعا تیار ہو جاتی ہے نوشیرو کے گھر پر آنے کے لیے۔ دعا جب تیار ہو کر نوشیرو کے گھر پر آئے گی، نچیرواں آگے ہی بیٹھا ہوگا۔ نچیرواں دعا سے کہے گا کہ تمہارے پاس وہ ریکارڈنگ کہاں پر ہے؟ دعاؤں سے کہے گی کیا تمہیں جفر کی باتوں پر یقین نہیں آیا جو تم نے مجھے بلانے کی زحمت کی ہے؟ تو نوشیروان کہے گا ریکارڈنگ تمہارے پاس موجود ہے، ہمیں جفر نے سب کچھ بتا دیا ہے، جب تک تم یہاں پر نہیں آؤ گی ثبوت لے کر تو ہمیں کیسے یقین آئے گا؟ تو دعا نوشیرواں سے کہے گی کہ اگر سچائی تمہارے سامنے آ دی گئی تو تم نے کشمالہ کا آخر کار ہی کیا لینا ہے، تم تب پہلے ہی میرے خلاف ہو، اب تم مجھ سے معافی مانگنے لگ جاؤ گے۔ اور ایک بات یاد رکھنا نصرواں، جب سچائی تمہارے سامنے آئے گی تو تم یقین رکھو میں تمہیں ہرگز نے معاف نہیں کروں گی۔